Today's class is very clear. First of all, we are going to talk about use effect hook, and after that, we will talk about Axios. First of all, let's start with Axios. Okay, तुम तो यार तुम जाओ उत्तराखंड में पहाड़ों की हवा खाओ तुम. ओके, जस्ट कम हियर. तुम बुरा तो नहीं मानते अमन? नहीं, मुझे लगा कि कहीं और से इसका चालू होने का और तो फिर ना बंद करने तो चालू हो जाए। ना, ये वाला ना इधर से जो सेकंड वाली बटन है ना, इससे होगा. हाँ, स्पीड दोनों की 2 पे कर देना, वरना आवाज करेंगे, रिकॉर्डिंग में आएगी. दोनों की स्पीड दो पे कर देना, ठीक है? वो वाला थोड़ी तेज आवाज. हाँ ठीक है, चलिए. ओके, सो वी आर इन दिस डायरेक्टिव. लेट मी क्लोज. ठीक है. वाह सर, कितनी बार एजेंडा बताओगे? So this is our root project. Okay, first of all, let's talk about Axios. We are starting with Axios. Uh, do we know about Axios? What is Axios? Bubbly? What is Axios? Axios is HTTP client. Okay. So first thing that we go to know about Axios, this is HTTP client, and ये तो इतना तो वेबसाइट पे दिखा दिया. एंड और क्या है? नो, नाम नहीं, नो भाई थिया. ठीक है. एक यूनाइटेड स्टेट. फिर कौन कौन से 3 स्टेट है? ओके, नो आइडिया. एक थर्ड पार्टी, ठीक है. One more keyword that we find out today about Axios, that is third party library or library. And okay, and okay, yep. See, first of all, make sure Axios is simple, just a HTTP client, right? There is nothing more than that. So now, right now, we are going to discuss what is HTTP client, because HTTP client has hidden meaning of Axios. What do we understand by HTTP client? Can you give me example of one or more HTTP client except Axios? Is there anyone else rather than this Axios? Do we have another HTTP client? You know what is browser? Do you know what is browser? No, we don't know. We do not know, sir. अगर हमें पता होता तो हम यहाँ पे थोड़ी होते. ठीक है, बताता हूँ. So browser is HTTP client. Oh my God. Sir, browser is HTTP client. Okay, let me tell you how does it work. Make sure website or internet is a physical planet. No, internet is a virtual planet, like a practical planet. Like, so if you want to meet me, you will have to come to my location, right? So that you can meet me. Similarly, if you want to use any website, you will have to reach up to the location of it. And HTTP client helps you to find that location, right? So when I'm searching facebook.com, जब मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ facebook.com, then what is happening? Actually, there is some hidden HTTP address, IP address of facebook.com, that let me check, look up. Sorry, DNS. DNS means domain name server, where each domain name is registered with a corresponding IP address. Let me check. Domain lookup. Yes. So we are just searching the IP address of Facebook. Let me, okay, find DNS. Yeah. So this is IP address of Facebook. Anyways, we are not deep diving that much into networking part, but yes, we know now that to reach up to that location, up to that IP address, right? भैया ऐसा ही तो होता है. ब्राउजर है, यहाँ कुछ एड्रेस डालो, ये हमें पहुंचा देगा वहां पे, जो भी चीजें हमें दिखा देगा, है ना? ऐसे वर्क करता है. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, व्हेन आई ऑलरेडी हैव अ एचटीटीपी क्लाइंट एक्सियो ब्राउजर, so why do I need Axios?
Why do I need Axios? Is it comfortable in English, जयराम? No, ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो भैया जब मेरे पास HTTP क्लाइंट है, एक ब्राउजर, तो मुझे Axios की रिक्वायरमेंट क्यों है, मुझे ज़रूरत क्यों है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देयर इज समथिंग नोन एज फेक स्टोर API, राइट? मैं सर्च करता हूँ। सो फेक स्टोर API इज नथिंग बट जस्ट अ प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमें क्या करता है, डेटा देता है। इट गिव्स अस सम रो डेटा टू यूज ऑन आवर वेब पेज, राइट? तो भैया इन्होंने हमसे क्या बोला, प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, कार्ड का चाहिए, यूजर्स का चाहिए, लॉगिन का चाहिए। मैंने कहा प्रोडक्ट का डेटा दे दो मुझे, ठीक है। अब ये डेटा आ रहा है, ये डेटा पता है किस फॉर्मेट में है? बताओ क्या फॉर्मेट है डेटा का? हाँ, नॉन रिलेशनल, कौन सा? जेसन। जेसन, यस एग्जैक्टली, जेसन। सर हाउ डू वी नो दिस इज जेसन डेटा? कैसे पता? की वैल्यू पेयर्स। नहीं, ऑब्जेक्ट में भी होती है की वैल्यू पेयर, है ना? ऑब्जेक्ट Yes. में ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर ऐसे की वैल्यू पेयर है, ये है नेम इज इक्वल टू हासिब, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मेक श्योर यार, जेसन क्या है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन और ऑब्जेक्ट में सिर्फ ये फर्क है, जेसन में जो की होगी ना हमेशा डबल कोट्स के अंदर होगी, की हमेशा डबल, हमेशा हमेशा एवर यू विल फाइंड इट इनसाइड डबल कोट्स। एम आई क्लियर? तो भैया जहां पे भी हमें एक ऑब्जेक्ट दिखा जिसकी की डबल कोट्स के अंदर है, तो वी विल अंडरस्टैंड दिस इज जेसन डेटा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जेसन डेटा। सी पता है क्या होता है? जैसे वेबसाइट है, उसका एक एक्सटेंशन कोड है HTML। ऐसे जब हम डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड के बीच में सिर्फ डेटा भेजते हैं ना कि डॉक्यूमेंट, तो हम जेसन फॉर्मेट यूज करते हैं। पहले कभी हम कुछ और करते थे, पहले हम टेक्स्ट करते थे, और बहुत पहले। अभी हम जेसन के बारे में बात करते हैं। ओके, सो ये एड्रेस मैंने कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। चलो एक नया टैब खोलते हैं। ये क्या है? ब्राउजर। एंड व्हाट ब्राउजर? सर HTTP क्लाइंट। HTTP क्लाइंट मतलब HTTP क्लाइंट, अच्छा ठीक है। Axios से हम क्या करते हैं? आपने सब बोला फैच करेंगे। अरे फैच क्या है? फैच तो एक मेथड है, बट एक्चुअल में HTTP क्लाइंट किस काम आते हैं? HTTP रिक्वेस्ट भेजने के। रिक्वेस्ट होती है 2 या 4 या 5 प्रकार की। गेट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मैं क्लियर यहाँ तक? भैया जब बैकएंड समझोगे ना तब अच्छे से इन चीजों के बारे में जान रहे होगे। कुल मिला के पता है क्या है? कुल मिला के ये चीज है, आप कोई भी वेबसाइट बना लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज बना लो, उस वेबसाइट में ना आप थ्रेड ऑपरेशन करोगे। थ्रेड मतलब या तो आप कुछ चीज क्रिएट कर रहे होगे कि भैया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, रीड कर रहे होगे, मीन्स यू विल बी फैचिंग और रिट्राइविंग सम डेटा फ्रॉम समवेयर, अपडेट कर रहे होगे, राइट? ओके, एंड यू विल बी डिलीटिंग। ओके, सो हम सिर्फ या तो क्रिएट करेंगे, या तो क्रिएट करेंगे, या फिर फैच करेंगे डेटा को, अपडेट करेंगे, या फिर डिलीट करेंगे। ये 4 प्रकार के एक्शन होते हैं। When we want to create something, we use method for that, that is post. जब हम रीड करना चाहते हैं, we want to use get. जब हम अपडेट करना चाहते हैं, we use put. जब हम डिलीट करना चाहते हैं, we use delete. अच्छा, जब हम डिलीट करना चाहते हैं ना, 2 टाइप के डिलीशन, सॉरी, जब हम अपडेट करना चाहते हैं 2 टाइप से अपडेट करना चाहते हैं। वेदर समवेयर वी वांट टू अपडेट पार्शियली, मतलब आधा डॉक्यूमेंट, कहीं पे हम पूरे डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहते हैं, तो पुट एंड पैच अकॉर्डिंगली हम यूज कर लेते हैं। बैकएंड का पार्ट है, ज्यादा डीप डाइव नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब समझते हैं जरा। ये जो एड्रेस कॉपी किया है ना मैंने, ये IP एड्रेस कॉपी किया, मैंने बोला HTTP क्लाइंट मेरे को इस लोकेशन पे पहुंचा दो। क्या है? एंटर हिट किया, IP एड्रेस पे आ गए। अरे बाप रे, यहाँ पे तो ये है, क्या है सर? ये डेटा। बहुत बढ़िया। देन व्हाट हैपन? सर देखो, HTTP क्लाइंट जो हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं ना, ये ब्राउजर, इसमें ना कुछ ड्रॉबैक नहीं कह सकते, इसमें ना हमारे पास कुछ लिमिटेशन है, हाँ रिस्ट्रिक्शन है। पहला क्या? मैं ना राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट किया, लेट मी ओपन लाइक डिबगिंग टर्मिनल नाउ। Let me click on network tab. We all know that network tab is the one which shows us all the communication between front end and back end. So I am making a brand new request on the same IP address. एक बार फिर से enter hit किया, प्रोडक्ट्स आ गए क्या? आ गए क्या? बहुत बढ़िया। सर रिक्वेस्ट का टाइप URL क्या है? ये वाला, ये IP एड्रेस है। सर रिक्वेस्ट का टाइप क्या है? गेट।
मीन्स अभी आप डेटा को सिर्फ रिट्रीव कर रहे हो, मांग रहे हो, पूछ रहे हो, ये डेटा हमें दे दो, ये डेटा हमें दे दो ठाकुर। क्लियर है? पक्का? देख लो। चलो बड़े आगे यहाँ तक सब कुछ ओके। सर बहुत थ्योरी में ले जाते हो, बहुत थ्योरी में, इतनी थ्योरी में कि नींद आ जाती है। फंडामेंटल देखो, जब तक पता ना हो जो हम यूज करने वाले, क्यों यूज कर रहे हैं, क्या फायदा पढ़कर, है ना। तो हमने कहा एक्चुअली वी आर जस्ट यूजिंग दिस डेटा, वी वांट टू यूज दिस डेटा। सी एक तो एचटीटीपी क्लाइंट से ना हम गेट टाइप की, मेक श्योर जो ये ब्राउजर है, नो डाउट ब्राउजर इज एचटीटीपी क्लाइंट, बट इज सम डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट का टाइप होता है ना, गेट होता है। हम अपडेट नहीं कर सकते कि पुट कर रहे हैं, मतलब कुछ अपडेट कराना है या डिलीट करना है। बाय डिफॉल्ट ये बोल रहा है मैं तो बस कुछ लेने आया हूँ तुमसे, लेके चले जाऊंगा, ठीक है। पहले तो रिक्वेस्ट अपडेट नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो डेटा है ना, इस अब जो डेटा है इसको सेम एज इट इज रेंडर करा दिया डॉक्यूमेंट पे। ऐसा नहीं कि कहीं डिव में डाला हो, जैसे इमेज है, इमेज को कहीं इमेज के एसआरसी में डाल के इमेज को दिखा दिया हो क्या हो। तो डेटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके डायनेमिक रेंडर नहीं करा पा रहे। डायनेमिक रेंडर मतलब जो डेटा है सेम ऐसा नहीं, इसका कुछ फिल्टर करके कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अपने वेब पेज पे दिखाना, ये हम एज ऑफ नाउ अभी नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अब देखो इस डेटा को मॉडिफाई कैसे करते हैं, आ जाओ इधर। मैंने कहा सर लेट्स टॉक अबाउट Axios नाउ because we have created our base till yet. So what is Axios? Sir, what is Axios? I want you to remember few of the terminologies from here. We have come to the official website of the Axios, and yeah, this is official documentation of Axios. So let's read it out. Cool. What is Axios? Sir, promise based HTTP client. Client मतलब हम HTTP रिक्वेस्ट मार सकेंगे, इससे डेटा को ला सकेंगे। इसको हम नोड जेएस पे, देखो आइसोफॉर्मिक का मतलब होता है फ्रंट एंड पे भी यूज कर सकते हो, बैक एंड पे भी, बट अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड पे यूज करेंगे, ठीक है। इसने बोला ओके, बाकी तो कुछ ठीक नहीं है, बस आपको एक चीज समझनी है, प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस। दूसरा क्या याद रखना, HTTP क्लाइंट, ठीक है। अब ये बताओ प्रॉमिस क्या होता है, कौन जानता है प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस, व्हाट इज प्रॉमिस? बताओ उदित। पढ़ा था, कभी तो पढ़ा था सर, याद नहीं आ रहा। बताओ सुशांत, प्रॉमिस क्या है? अच्छा अच्छा, अच्छा, लेकिन जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड है। चलिए आइए समझते हैं। अब आज पढ़ते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। कितना तुम लोगों का बेस कच्चा है यार। चलो आओ पढ़ लो। Actually we have two types of paradigms of the programming. या तो हम प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं सिक्वेंशियली, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है सर, हमारा कोड ना टॉप टू बॉटम चलता है, हमारा कोड टॉप टू बॉटम चलता है, सिंक्रोनस टॉप टू बॉटम चलेगा। एक होता है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस और सिंक्रोनस टॉप टू बॉटम कहना अच्छा नहीं है, इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं एक रेस्टोरेंट में गया, ठीक है, यहाँ पे एक वेटर था W, इसको बोला भैया मुझे बर्गर ला के दो। ये यहाँ पे एक कुक है, वेटर आ गया कुक के पास, ये ना बेचारा यहाँ पे वेट करे जा रहे जब तक मेरा बर्गर रेडी नहीं हो जाता। अब यहाँ पे एक और पर्सन है B, इसको भी कुछ ऑर्डर करना है, वेटर ने बोला नहीं अभी नहीं कर सकते, अभी मैं A के साथ बिजी हूँ। इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, मतलब वन थिंग एट ए टाइम, एक टाइम पर सिर्फ एक काम करूँगा। क्लियर है भाई साहब? अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी मैं वेट कर रहा हूँ जब तक मेरा खाना नहीं बन जाता। जब मेरा ये खाना बन जाएगा, मैं ये खाना लूंगा, इन ए भाई साहब को दे दूंगा, तब मैं आपके ऊपर आऊंगा। दिस इज हाउ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वर्क, टॉप टू बॉटम। मेरे पास एक जॉब है, राइट, मेरे पास एक जॉब है, जब तक वो जॉब खत्म नहीं हो जाएगी तब तक, जॉब मतलब टास्क या काम, जब तक वो काम या टास्क खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं नेक्स्ट काम नहीं करूंगा। अब असिंक्रोनस, अभी प्रॉमिस की बात नहीं कर रहे, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। तो हम यहाँ पे आए, दोबारा वेटर है,
ए ने बोला वेटर से बर्गर चाहिए, वेटर आया कुक के पास, बर्गर चाहिए, कुक ने बोला ठीक है मैं बना रहा हूँ। अब हम आ गए वापस। अब वेटर बी में बी भी है, वेटर ने बी से पूछा क्या चाहिए, इसने बोला कोका कोला चाहिए। ये गया भाग के फ्रिज में से कोका कोला निकाल के लाके इसको दे दी। इतने में इसने बोल दिया सी ने क्या कि ये जो है, ये जो बर्गर था बन गया, ये बर्गर ए को दे दिया। अब ये बताओ पहले वाला जो फ्लो चल रहा है रेस्टोरेंट का वो ज्यादा बेटर है या बाद वाला? ऑब्वियसली बाद वाला। बेनिफिट क्या है देखो, पहले वाले में पता है क्या है, ऑल्दो इस बंदे को क्या चाहिए थी, कोल्ड ड्रिंक। क्या इसका कुछ लेना देना था गैस से या कुक से या ए से? नहीं। बट फिर भी इसको वेट करना पड़ रहा था जब तक, क्योंकि लाने वाला व्यक्ति वेटर है और वेटर बोल रहे जब तक ये काम नहीं हो जाएगा मैं हिलूंगा नहीं, कसम खा रखी है। बट सेकंड काम में क्या है भाई साहब, काम बंद करने वाला व्यक्ति तो ये है, काम ये कर रहा है, तो मैं क्यों वेट करूं, मैं अपना काम करूंगा, करा दूंगा और बस। पहले बी को कोल्ड ड्रिंक दे दी, मैं तो खा लिया, दोबारा आके इसको देख लूंगा। सो काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग, बढ़िया काम चल रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा इधर आओ, यहाँ पे लिखो ऑनलाइन जेएस कंपाइलर, ठीक है लिख दिया, चलो बहुत बढ़िया। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर लिया, ओके। एंड यहाँ पे ना मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे सर एक काम करो यहाँ पे लिख दो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, मैंने लिखा सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट। एंड यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन ले लिया मैंने, एंड यहाँ पे लिखा 1000 एंड यहाँ पे लिखा कंसोल में लॉग करा दो सब ठीक है, और फिर प्रिंट करा देना कंसोल पे लॉग गुड मॉर्निंग। चलो सेव कराऊंगा, रन कराऊंगा, आउटपुट में क्या आएगा, गुड मॉर्निंग एंड देन सब ठीक है। रन कराया गुड मॉर्निंग एंड देन, अरे बाप रे सब ठीक है, बाद में कैसे आ रहा है? यहाँ पे मैं इसको 3 सेकंड कर देता हूँ। अब बताओ क्या आएगा, गुड मॉर्निंग एंड देन 3 सेकंड बाद सब ठीक है। सी थिंग्स, हाउ थिंग्स आर वर्किंग, मेक श्योर दिस इज वन ऑफ द हॉट स्पॉट ऑफ द इंटरव्यूज कि इफ जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड देन यहाँ पे भी हम पता है क्या कर रहे हैं, देखो टेक्निकली अगर जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होती, मतलब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे होते, तो पता है ये कोड कैसे चलता, ये कोड ऐसे चलता, हम पहले ही 3 सेकंड वेट करते, 3 सेकंड बाद सब ठीक है प्रिंट कराते, तब गुड मॉर्निंग आता। दिस इज वी कैन से कि ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पता है कैसे वर्क करती है, 3 सेकंड है, 3 सेकंड का हमने क्या लगा दिया, टाइम आउट, कि भाई 3 सेकंड बाद जब पूरे हो जाएंगे तब ये काम होगा। लेकिन हम 3 सेकंड वेट नहीं कर रहे, हम 3 सेकंड में यहाँ से गुड मॉर्निंग को प्रिंट करा रहे हैं। सर अपने एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, मैंने कहा पूछो। देखो सर बात है ऐसी, जावास्क्रिप्ट है सिंगल थ्रेडेड, लेट मी शो यू इज जेएस सिंगल थ्रेडेड। भाई ऐसे कैसे यकीन कर लें, सर की बात है, हमें तो प्रूफ चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिंगल थ्रेडेड का मतलब पता है क्या होता है, वो वेटर वेट करेगा जब तक खाना नहीं बन जाएगा तब तक, मतलब सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। मेक श्योर क्या हम सिंगल थ्रेडेड से असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक ही थ्रेड है, एक टाइम पे एक ही काम करेगा, तो वो या तो वेट कर सकता है या फिर कुछ रन करा सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता वेट भी कर रहा हूँ और काम भी कर लूँ। समझ लो मेरी बात, समझ गए, बहुत बढ़िया, फिर तो मजा आ गया। अब एक क्वेश्चन बनता है सर, इफ जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड तो यहाँ पे वेट कौन कर रहा था? एक टाइम पे काम चल रहा है, तो जावास्क्रिप्ट में हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इस चीज को समझने के लिए ना हमें दोबारा थोड़ी देर नोड के स्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा, नोड या फिर ब्राउजर के स्ट्रक्चर पे। देखो कैसे वर्क करता है ब्राउजर। ये हमारा पूरा ब्राउजर है, ठीक है, ये ब्राउजर है, समझो इसका आर्किटेक्चरल लेवल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ब्राउजर में ना यहाँ पे क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, है क्या, हाँ कंपोनेंट। बहुत बढ़िया सर, कुछ तो होगा, हाँ यहाँ ठीक है, ये है हमारा V8 इंजन। जब हम क्रोम ब्राउजर के अंदर है, मतलब JS इंजन, मतलब JSRE रन टाइम एनवायरनमेंट। क्लियर है जी, क्लियर है जी। अरे एक डिजाइन है,
इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सच में आर्किटेक्चर है हमारे नोड का। अंदर एक V8 इंजन रखा है। अब V8 इंजन पता है क्या है? V8 इंजन बोलता है मैं जावास्क्रिप्ट का वो इंजन हूँ जो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराऊंगा। तो जावास्क्रिप्ट का कोड, ये जो V8 इंजन है, जितना भी सिंक्रोनस कोड है, सिंक्रोनस मतलब जो सीक्वेंस में चल रहा है कोड, टॉप टू बॉटम चल रहा है, जितना भी सिंगल थ्रेड वाला कोड है, वो सारा का सारा काम करता है V8 इंजन। लेट मी शो यू हाउ थिंग्स आर वर्किंग। टॉप टू बॉटम आया, सबसे पहले जैसे ये कोड V8 इंजन में आया ना, V8 इंजन ने बोला बॉस दिस इज असिंक्रोनस कोड, आई कैन नॉट डू इट। सो इसी ब्राउजर के अंदर ना, इस ही में यहाँ पे होता है एक, क्या होता है ये, जावास्क्रिप्ट आती है। और अगर तुम्हें ये नहीं पता ना इवेंट लूप क्या है, तुम्हें जावास्क्रिप्ट आती नहीं है, मजाक कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के नाम पे, धब्बा हो तुम जैसे डेवलपर के नाम पे। इवेंट लूप क्या है सर? इवेंट लूप ना एक्चुअली दिस इज द वन। इस इवेंट लूप का क्या काम है? हमारे पास ये सेट टाइम आउट फंक्शन आया, इसने कितना टाइम बोला? 3 सेकंड। मेक श्योर V8 इंजन नहीं देखता टाइम कितना है, टाइम कोई दिक्कत ही नहीं है। V8 इंजन ने बोला असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कैसे पता लगा? देख के सेट टाइम आउट, इसको जंप करा दिया कहाँ पे? इवेंट लूप पे। समझ रहे हो? इवेंट लूप मतलब वो कुक जो खाना बना रहा है, कौन? कुक। कौन? कुक। तुम बोल ही गए आखिर। तो कुक जो खाना बना रहा है, अब क्या होगा? कुक ने बोला अच्छा काम तो मैं करूंगा। अच्छा यहाँ पे 3 सेकंड है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अब जब तक ये काउंट डाउन कर रहा है तब तक V8 बोल रहा है मैं क्यों खाली बैठूं यार, तब तक मैं क्या प्रिंट करा दूंगा? गुड मॉर्निंग। ठीक है, जब 3 सेकंड हो जाएंगे ना, जब 3 सेकंड, अरे जब 3 सेकंड हो जाएंगे तब पता है क्या होगा? 3 सेकंड के बाद ये इवेंट लूप खुद रन नहीं कराएगा। इवेंट लूप का काम है सिर्फ काउंट डाउन कराना। इवेंट लूप क्या करेगा? इस कोड को बाकी फिर से पुश कर देगा स्टैक में या V8 में डाल देगा, अब तुम इसे रन कराओ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत समझ आया इवेंट लूप का काम क्या है? भाई साहब V8 इंजन ना हमारे सारे सिंक्रोनस कोड को रन कराएगा। जहां पे भी असिंक्रोनस कोड आया वो कोड, वो पर्टिकुलर चंक उठा के किसके पास भेज देगा? इवेंट लूप के पास। इवेंट लूप काउंट डाउन करेगा, V8 हमारा टॉप टू बॉटम। V8 ने बोला इतना कोड असिंक्रोनस था ना, छोड़ो यहाँ पे आओ। V8 ने बोला गुड मॉर्निंग प्रिंट करा दिया। अब इवेंट लूप ने बोला 3 सेकंड बाद इसको वापस लो। इसका नाम लूप इसलिए है, काउंट डाउन करेगा वापस डाल देगा, काउंट डाउन करेगा डाल देगा, काउंट डाउन करेगा डाल देगा, डाल देगा, बार बार ये सेम रिपीट करता है। हाँ इवेंट क्यू, हाँ वो और ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा इवेंट के अंदर ही आता है। तो इवेंट लूप इसको वापस यहाँ पे डाल देगा और V8 इसको रन कराएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया देखकर। फिर यहाँ पे ना एक लाइव व्यू करके कुछ, चलो वो छोड़ो, इतना बस इतना समझ आया सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे होती है। सिंपल आपको ये बोलना है, कुछ डिजाइन नहीं बनाना आपको, बस ये बोलना है सर जावास्क्रिप्ट इंजन can only run single threaded code, but there is built-in support of event loop in every browser. Event loop हमारा asynchronous programming को handle करता है। तो हमें ऐसा लगता है जावास्क्रिप्ट मल्टी थ्रेडेड है, बट जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है। जो वेटिंग वाला काम है वो इवेंट लूप कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे ये कर दो, बताओ, अब ये बताओ अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, अब ये आउटपुट में क्या आएगा बताओ? सेम आएगा, देख लो। सब ठीक है, गुड मॉर्निंग। सब ठीक है, गुड मॉर्निंग। देखो पहले सब ठीक है फिर गुड मॉर्निंग, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन गुड मॉर्निंग और सब ठीक है, क्या आएगा? सर मैं गुड मॉर्निंग सब ठीक है। मेक श्योर इफ आसिफ सर हैज गिवन यू 2 ऑप्शंस देन बोथ आर इनकरेक्ट। देन क्या आएगा सर? अरे यार देखो पहले क्या था, ठीक है, अरे दूसरा वाला सही है। पहले क्या था, वो 3-4 सेकंड वेट कर रहा था। अब पता है क्या होगा यहाँ पे यार? V8 इंजन बोलेगा असिंक्रोनस प्रोग्राम है, सेट टाइम आउट देख के इवेंट लूप के पास भेज देगा। इवेंट बोलेगा छी ये तो काउंट 0 है चल भाई रन करा। तो तुरंत ही, मतलब वेट नहीं करेगा, डायरेक्ट पहले आएगा गुड मॉर्निंग एंड देन गुड मॉर्निंग एंड देन सब ठीक है, इंस्टेंटली आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे कट लेके एक बहुत बड़ा इमेजिनरी लूप ले लूँ, लेट i इज इक्वल टू 0, i must be less than or equal to सम ये बड़ा सा नंबर और i प्लस प्लस एंड देन ये। अभी मैं रन कराऊंगा और 1 मिनट रुको जरा। हाँ फिर मैं बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग। अभी बताओ क्या आएगा? सब ठीक है पहले आ जाएगा, हो पहले सकता है गुड मॉर्निंग एक बार छप जाए।
पहले सब ठीक है आ जाएगा, फिर गुड मॉर्निंग आएगा। कितनी बार आएगा गुड मॉर्निंग? 1 लाख जितने। मतलब जितना ये नंबर लिखा है ना। फिर कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। मेक श्योर यहाँ पे सेमी कॉलन है, मतलब लूप ना यहाँ पर एंड हो गया, ये ना लूप का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्या है यार तुम भी, कोई नहीं। सॉरी। अभी मैं इसको रन कराऊंगा, देखो क्या होगा। ऑल्दो यहाँ पे टाइम कम है, ऑल्दो ये देखो, ये तो सिंक्रोनस कोड है। पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा। तो भैया पहले सब ठीक है आएगा या गुड मॉर्निंग आएगा? बताओ। पहले गुड मॉर्निंग आना चाहिए, है ना। आना तो, आने को तो मेरे पास फरारी होना चाहिए, नहीं है ना। आएगा क्या ये बताओ। और इसको निकाल दो कान से, बीमारी हो जाती है लगा के रखने से। चिपक के आएगा, चलो ठीक है, निकालो उसे। हाँ, केस नहीं है क्या इसका? केस नहीं है, लगा लो भाई, लगा लो। तुम क्या फायदा, 2000 रुपये का नुकसान हो जाए तुम्हारे, 500 400 का। ठीक है भाई, हाँ बताओ, बताओ यार क्या आएगा, गुड मॉर्निंग या सब ठीक है? गुड मॉर्निंग। तुमसे तो प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं प्रोजेक्ट थोड़ी बनवाएगा तुमसे इंटरव्यूअर। तुम्हें तो ऐसे निकाल देगा बाहर से ही बाहर वो। देखो यहाँ पे पता है क्या होगा, पहले गुड मॉर्निंग ही आएगा, सब ठीक है आएगा बाद में। पता है क्यों? ऑल्दो यहाँ पे कोई टाइम है ही नहीं, बट एक बार इवेंट क्यू में जो गया ना, इवेंट क्यू V8 में, उसको बाद में इंसर्ट कराएगा, बाद में। जब ये चल जाएगा इसके बाद होगा ये रन। तो अभी इसको रन कराएंगे, आउटपुट में आया गुड मॉर्निंग एंड देन सब ठीक है। कोई नहीं, दिस वाज वन ऑफ द वे जिससे हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं। देखो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ना अपने पास दो तरीके हैं, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के दो तरीके हैं। पहला, कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉल बैक फंक्शन यूज किया है अंदर, कॉल बैक फंक्शन CB कॉल बैक फंक्शन। दूसरा प्रॉमिस। तो यार कॉल बैक फंक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फंक्शन के पार्ट में। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉमिस की। इसको भी एक थ्योरेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मैं हूँ एक, मेरा एक दोस्त है बी। मैंने इसको कॉल किया, भाई पिज़्ज़ा खाने चल रहा है? इसने कहा भाई चल चलते हैं। मैंने कहा भाई पैसे मेरे पास नहीं। इसने कहा तू कैसी बात कर रहा है यार, चल मैं दे दूंगा पैसे। मैंने कहा ठीक है। अब पैसे ये दे रहा है, इसने बोला लेकिन एक दिक्कत है, मैं नहा के आऊँगा। मैंने चल भाई नहा के आ। अब ये 30 मिनट बोल रहा है, 30 मिनट लगेंगे, मैं 30 मिनट इसका वेट कर रहा हूँ। तो प्रॉमिस, हमारे बीच प्रॉमिस हुआ। बी ने क्या बोला कि भाई पेमेंट पेमेंट मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई कर दियो, ये प्रॉमिस होता है। अब क्या हो, 30 मिनट बाद इसका वेट करेंगे, 30 मिनट इसका वेट करेंगे, 30 मिनट बाद जाएंगे, जो भी पेमेंट होगी ये करेगा। अब प्रॉमिस ना, प्रॉमिस क्या होता है, हाँ ये वाला एग्जांपल बढ़िया नहीं था। मैंने कहा 16 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, ठीक है। मैंने कहा यार एक काम कर भाई, तू बहुत बड़ा पैसे वाला है, तो मेरे को ना 10,000 रुपये दे, बर्थडे पे पार्टी करेंगे बहुत खतरनाक वाली। नहीं इधर आ जा, वो तो इमेजिनरी बर्थडे है। मैंने कहा 16 अगस्त को बर्थडे है मेरा, 10,000 रुपये दे भाई। अब क्या आधार कार्ड दिखाऊं सच में बर्थडे, लेकिन कोई पार्टी वार्टी नहीं, ठीक है। प्रॉमिस क्या, हाँ ये सही है। मैंने कहा 10,000 रुपये दे यार, दे दियो यार, मेरे को ना पार्टी करनी है, नए नए दोस्त बने ऑफिस में, उन सबको पार्टी देनी है। ठीक है, दोस्त बने, स्टूडेंट नहीं, ठीक है। मैंने कहा पार्टी देनी है। इसने बोला ठीक है भाई, तू ना 14 अगस्त की रात को ले लियो। मैंने कहा 15 का रिस्क नहीं ले सकता भाई, क्या पता देना, ये 14 अगस्त की रात को बात हुई। इसने कहा 14 अगस्त की रात को 11 बजे दे दूंगा। इसने पूछा कितने चाहिए? मैंने कहा 10। अब ऑब्वियसली 10 रुपये तो मांगूंगा नहीं, मैंने कहा 10 चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आज कितनी तारीख है? 12 अगस्त। तो यही प्रॉमिस होता है। इनिशियली हमारा प्रॉमिस किस स्टेट में जाएगा? पेंडिंग में। स्टेट क्या है कि अभी, स्टेट मतलब प्रॉमिस का स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है। अभी प्रॉमिस का स्टेटस या फिर स्टेट है कि अभी ना ये पेंडिंग है, ठीक है। अब मान लो 14 तारीख आ गई, रात में 11 बज गए। अब 11 बजे 14 तारीख की रात में 11 बजे ये बंदा, ये व्यक्ति मुझे कुछ देगा या नहीं देगा नहीं पता। तो जब टाइम हो जाएगा तब यहाँ पे अब दो चीज़ हो सकती है, या तो
या तो प्रॉमिस डिसॉल्व होगा, या तो प्रॉमिस डिसॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अच्छा, इन दोनों को हमने इन दोनों को हमने एक ही कैटेगरी में क्यों रखा, अलग क्यों नहीं रखा स्टेटस? बिकॉज दोनों एक ही है। कुल मिला के चाहे 10-11 तारीख को वो मुझसे ये बोले कि भाई ले पैसे पकड़, या फिर वो मुझसे ये बोले भाई यार पैसे हो नहीं पाए, वो ना मैं उसके दोस्त के वहाँ चले गया था, वहाँ पैसे लग गए, तो मैं इंतजार करना तो बंद कर दूंगा। कुल मिला के मेरा पेंडिंग वाला स्टेटस तो खत्म है ना, पेंडिंग खत्म। अब या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट हो जाएगा। एक और भी स्टेटस होता है क्या, ये भाई साहब इसने मुझे मना नहीं करा, इसने कहा मना करूंगा तो बुरा मान जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या, इसने बोला ये ले भाई 10 रुपए पकड़। अरे यार एक बात बता, तेरे से 10 रुपए का मैं चार दिन का समय मांगूंगा है? इतना करीब समझाएगा तूने? भाई मैं 10 रुपए के लिए 4 दिन का इंतजार करूंगा। फिर इसने बोला यार देख तूने 10 बोला, मुझे लगा 10 रुपए मांग रहा होगा तू। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एरर, कि हमें जो चाहिए था वो रिक्वायर्ड डेटा नहीं है। तो वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ आवर प्रॉमिस, या तो पेंडिंग हो सकता है, रिजॉल्व या रिजेक्ट हो सकता है, या एरर हो सकता है। एंड फॉर्चुनेटली प्रॉमिस के मामले में ऐसा है कि हमें खुद ना प्रॉमिस बनाने नहीं होते, हमें बस हमारे पास प्रॉमिस होता है, बस हमें रिजॉल्व करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोबारा कि यार एक्सियोस क्या है, एचटीटीपी क्लाइंट है, ठीक है। इसने बोला कि अगर आप इसको ना ऐसे यूज कर रहे हो, क्या नाम है, अपने फ्रंट एंड पे यूज कर रहे हो, HTML में ये लिंक यूज करो और यूज कर लो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा वहाँ पे यूज नहीं कर रहा मैं इसको। अगर आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग देखी होगी तो उसमें होगा हमने CDN लिंक करके भी अटैच करके भी यूज किया था। बट अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, हम बोलेंगे अब हमारे पास नोड तो है, नोड के साथ साथ वी ऑल्सो हैव द CLI ऑफ NPM। तो अभी हम क्या करेंगे, हवन करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऐसा कुछ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे npm i एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पैकेज, क्या बोला इन्होंने, Axios। तो ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल Axios। तो मैंने लिखा npm इंस्टॉल कर लो Axios को, एंटर हिट किया। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वेट, हाँ हम ठीक लोकेशन में, क्लाइंट में अपने package.json को देख लेता हूँ Axios इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। Axios इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी तो रिएक्ट में 3 पैकेजेस हैं यहाँ पे, रिएक्ट डोम और रिएक्ट आइकन। देखो रिएक्ट आइकन इंस्टॉल किया था ना, वो भी आ गया है यहाँ पे। अब हम Axios इंस्टॉल कर रहे हैं। चल भाई हो जाए, इतना भी क्या टाइम ले रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह 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 वाह, इतना टाइम ले रहा है। चलो ठीक है, Axios आ चुका है, चलो कंप्लीटेड हो गया। Axios के साथ साथ और कितने पैकेज इंस्टॉल हुए, 126 पैकेज। इसके सब डिपेंडेंसीज होगी ना, ठीक है। नहीं कुछ 9 पैकेजेस हैं यार, पता नहीं कितने, छोड़ो। चलो अब मैं दोबारा एक बार प्रोजेक्ट को बाद में रन करेंगे, चलो कर ही देते हैं। npm run dev। मैं एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ, एंड कोड तो आपके पास ऑलरेडी होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा, आप सब लोगों ने बना लिया होगा। तो बाकी के सारे कंपोनेंट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, सो दैट मेरा इन्वायरमेंट क्लियर हो जाए, इजी हो जाए, तो आपको भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। ये 7-8 जो कंपोनेंट थे वो मैंने डिलीट किया। मैं आया test.tsx में। टेक्स्ट की जगह ना मैंने एक फाइल बनाई, इसका नाम रख दिया प्रैक्टिस, टेस्ट ही रख देता हूँ, ठीक है। टेस्ट में मैंने कहा इसको डिव में यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे लिख दो कि एक्चुअली टेस्टिंग Axios को टेस्ट करके देख रहे हैं कैसी लग रही है, ठीक है जी। चलो यहाँ कुछ दिक्कत है क्या, रिटर्न तो कर दिया, डिव है, आई डोंट नो ना, कुछ दिक्कत नहीं है, रिएक्ट थोड़ा स्लो था। अब मैं app.jsx में जाके पता है क्या करूँगा, इसको हटा के यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट कर लो टेस्ट को फ्रॉम करंट डायरेक्टरी में कंपोनेंट्स है, वहाँ पे टेस्ट मिलेगा, ठीक है। सेव किया एंड इसको लिख दिया मैंने क्वेश्चन लिस्ट की जगह यहाँ पे टेस्ट। सो नाउ इफ आई गो टू माय इंटरनेट ब्राउजर, फॉलो द लिंक एंड आई विल फाइंड आउट दैट कि यार यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है टेस्ट, क्या आ रहा है, टेस्टिंग Axios, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे सारा काम थोड़ी देर के लिए जो करना है, वो सारा काम कहाँ करना है,
कंसोल पे आए। अब देखो ये मिनिमाइज कर दिया इसको, थोड़ा ऐसे किया। मैंने कहा रिटर्न करने से पहले कंसोल पे हम कोई भी लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने बोल दिया जस्ट फॉर फन। सेव किया, आउटपुट में क्या आ रहा है, जस्ट फॉर फन। ट्वाइस आ रहा है, कोई बताएगा दो बार क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? स्ट्रिक्ट मोड की वजह से। वाह यार तुम तो टैलेंटेड हो। ठीक है, अब मैंने कहा इसको इसकी जगह ना यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, एक्सियोस को। ठीक है, सेव किया। इसने क्या बोला, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। मैं है यार एक्सियोस अभी तो इंस्टॉल किया है, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एक्सियोस। यार एक्सियोस तो आपने कर लिया, लेकिन अब आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सियोस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सिर्फ एक्सियोस लिख दो क्योंकि आप इंस्टॉल कर चुके इस पैकेज को, ये अपने आप ढूंढ लेगा नॉट मॉड्यूल्स में जाके। ठीक है, अब सेव किया, दोबारा रिफ्रेश करके देखा जरा क्या आ रहा है। एक्सियोस तो इसने बोला टेस्टिंग, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, एक्सियोस ना एक काइंड ऑफ फंक्शन है। एक्सियोस काइंड ऑफ अ फंक्शन रैपर है। अच्छा जी, फंक्शन के, अरे बाप रे तो कुछ तगड़ी चीज लग रही है। ठीक है, अब मैंने कहा दोबारा आते हैं एक्सियोस के इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे। तो इसने बोला एक्सियोस ना कुछ अलग अलग प्रकार की रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो मैंने कहा इसी तरह जब हम किसी डेटा, जैसे इस डेटा को फैच करके लाना चाहते हैं प्रोडक्ट्स वाले को, तो इस आईपी एड्रेस को किया मैंने कॉपी। मैं अब इधर आया ऐप के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा एक्सियोस जाओ गेट करो। गेट मतलब ढूंढ के लाओ इस यूआरएल पे जो भी डेटा है ना, जो भी सर्वर भेज रहा है उस डेटा को लाओ, कॉन्स्ट डेटा के अंदर रख दो, है ना। और फिर डेटा को कंसोल पे लॉग करा दो, डेटा को कंसोल पे लॉग करा दो। सेव किया। अच्छा, अभी मैं अगर ब्राउजर को जाके चेक करूंगा, ब्राउजर के कंसोल में मुझे क्या देखने को मिलेगा। If I'll go and check the console of my browser, what will I find there? What do you say? डाटा। कोई डेटा मिलेगा, बहुत बढ़िया। क्या मिलेगा? प्रॉमिस मिलेगा, क्योंकि हम तो चेक कर चुके हैं सर के साथ कर करके आ गए हैं ना। अभी नहीं करा, चलो ठीक है। देखो क्या मिला, चेक करते हैं। कुछ ना अजीब सी कहानी मिलेगी देखने को। रिफ्रेश किया, सो क्या हो रहा है, प्रॉमिस क्या बोल रहा है, प्रॉमिस है पेंडिंग स्टेट में। पेंडिंग मतलब यार एक बात बताओ, जब आप जैसे कभी आप गए होगे किसी दुकान पे सामान लेने, किराना, समझो आप सरसों के तेल का टीन लेने जा रहे हो, तो क्या होता है वो अपने कहीं पे क्या होता है इसको, जहाँ पे सामान स्टोर करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, गोडाउन। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो गोडाउन में जब तक लेने गया है तब तक आप वेट करोगे ना। यहाँ पे भी क्या है, डेटा यहाँ पे नहीं है, डेटा किसी एपीआई की पॉइंट से आ रहा है, कहीं एंड पॉइंट से आ रहा है, वहां से डेटा को लेने जा रहे हो, फैच करने जा रहे हो। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। इस चीज को समझने के लिए हमने बस प्रॉमिस में इतनी देर टाइम स्पेंड किया है, ताकि हमको प्रॉमिस है पेंडिंग स्टेट में। बाद में क्या लिख के आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्रॉमिस। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक्सपेंड करूंगा। एक चीज मेरे को ये बताओ, अभी जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे डेटा यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलो शर्त हो जाए इसी बात पे। ठीक है, देखते हैं। देखो प्रॉमिस क्या किया, प्रॉमिस एक्सपेंड, प्रॉमिस फुलफिल्ड, प्रॉमिस हो गया फुलफिल्ड। प्रोटोटाइप प्रॉमिस है, प्रॉमिस स्टेट फुलफिल था, रिजल्ट में क्या है, एक ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या है, डेटा। डेटा में वो 20 के 20 एलिमेंट है, 20 के 20 एलिमेंट है। देखो ऐसे भी आएगा, बट ऐसे ना एक प्रॉब्लम है। आओ बैठो। ऐसे ना वी डू हैव अ प्रॉब्लम हियर। द प्रॉब्लम इज दैट कि सर ये जो डेटा आ रहा है ना, अब मान लो एक बात बताओ, अभी आप क्या सोच के चल लो, डेटा के अंदर ना आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी होगी, फॉर एग्जांपल डेटा डॉट नेम करके। लेकिन जब आपको पता लगेगा डेटा तो नल है, अगर डेटा को प्रिंट कराते तो कोई एरर नहीं आता, लेकिन आप लिखोगे डेटा डॉट नेम, अब नल का नेम कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो वहां पे एक एरर आ जाता। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, जब तक डेटा नहीं आए, जब तक सरसों का तेल का टीन नहीं लेके आए गोडाउन से वो किराने की दुकान वाला, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉमिस को हम कैसे यूज करते हैं आइए बताता हूँ आपको। मैंने बोला एक्सियोस, सुन एक्सियोस गेट करके ला इस यूआरएल से कुछ डेटा। ठीक है, गेट करके ला, जब डेटा आ जाएगा ना देन, जब डेटा आ जाएगा देन तेरे को क्या करना है बताता हूँ। इसके अंदर देन के अंदर ना एक कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ। ठीक है, ये देखो देन है, देन ब्रैकेट था,
इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास रखा, फैट एरो फंक्शन रखा, इसके अंदर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिख दिया मैंने प्रॉमिस रिजॉल्व, मतलब प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है। अब रिजॉल्व की स्पेलिंग मत देखना, अमेरिकन इंग्लिश है ये। तो भैया रिफ्रेश करने देखो, इंस्टेंटली नहीं आया, थोड़ी देर बाद आया, थोड़ी देर बाद आया प्रॉमिस रिजॉल्व। जितना टाइम इसको फैच करने में लग रहा है डेटा, उतना टाइम ले रहा है। अब मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा कि प्रॉमिस रिजॉल्व लिख के दिखा दो आप, मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, आप ना अच्छे से बताओ वो डेटा कौन सा है। तो यहाँ पे जो दैन के अंदर यहाँ दिख रहा है ये पैरेंथेसिस, यहाँ पे आप लिख दो रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, रिस्पॉन्स पैरेंथेसिस। जैसे मैप मेथड में होता था आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते थे, ऐसे ही यहाँ पर भी है। थोड़ा जूम आउट, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं सो दैट आपको ठीक से दिखे। तो हमने क्या किया, एक्सेस से बोला गेट करके लाओ डेटा, जब ये गेट करके लाएगा देन इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट चेनिंग करके देन मेथड लगा दिया, है ना। देन को एक कॉल बैक फंक्शन पास किया इतना। ये कॉल बैक फंक्शन कब चलेगा, जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। हमने कहा इस फंक्शन में एक पैरामीटर दे दिया रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिस्पॉन्स से रिलेटेड, कि जो भी रिस्पॉन्स में हमारे पास आया है। तो मैंने कहा ये बकवास सी चीज़ क्या प्रिंट करा रहे हो, प्रॉमिस रिजॉल्व, इसकी जगह क्या प्रिंट करा दो, रिस्पॉन्स। ठीक है, सेव किया, नाउ लेट मी रिफ्रेश। तो देखो जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ ये डेटा प्रिंट हो गया। एक्चुअल में दिस इज नॉट द रियल डेटा, हमें क्या देखने को मिला है, एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में डेटा नाम की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि भैया यहाँ पे ना रिस्पॉन्स ना प्रिंट करा के रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स ना प्रिंट करा के रिस्पॉन्स का डेटा प्रिंट करा दो। ठीक है, रिफ्रेश किया तो भैया रिस्पॉन्स का डेटा आ रहा है क्या, 20 के 20 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ एक्सियोस। ठीक है, अब जब एक्सियोस से इतना काम कर लिया ना, कुछ मज़ेदार सी चीज़ करना है। अच्छा यार, कई बार ना हो सकता है मैं एड्रेस गलत डाल दूँ। ठीक है, सेव किया, अब एड्रेस गलत डाला तो क्या हो रहा है यार, मेरा ना ये एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाएगा, एरर आ गया। तो एरर हैंडलिंग करते हैं हम। देन में हम क्या लिखते हैं, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो ना तो एक और कैच मेथड पास करते हैं, इसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम ई रखते हैं, ई में क्या एरर आ जाएगा, पूरा जो भी ऑब्जेक्ट होगा एरर से रिलेटेड वो आ जाएगा। एंड जब हम कंसोल पे लॉक कराएंगे ई को तो हमें अपना पूरा एरर दिख जाएगा। सेव किया, देखो रिफ्रेश कराया, अब हमें दिखा रहा है एरर क्या, एक्सियोस का एरर है, नेटवर्क एरर है, कनेक्ट नहीं हो पाया, जो भी है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कोई नहीं, मैं इस आईपी एड्रेस को ठीक कर देता हूँ, freestoreapi.com एंड देन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ रहा है प्रोडक्ट का, बहुत बढ़िया। अब मैं पता है क्या करूँगा, अब मुझे एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें जब ये आ जाएंगे ना प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट फेच्ड। मतलब मुझे ना ऐसा कुछ दिखाना है कि सबसे पहले यहाँ पे होगा एक डिव लिया, सॉरी रिटर्न करना है, टेस्ट क्या है, ऐप में नहीं, यहाँ टेस्ट में नहीं, चलो ऐप में। यार ये वाली चीज़ ना वैसे हमें टेस्ट में जाके करना चाहिए थी, टेस्ट में ही चलते हैं। तो टेस्ट में आए एंड यहाँ पे हम इसको रिटर्न से पहले पेस्ट कर देते हैं। आप ऐप में करो या कहीं पे भी करो, लेकिन जहाँ पे आप एक्सियोस यूज़ कर रहे हो वहीं पे आपको एक्सियोस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्टेड एक्सियोस हियर, इंपोर्टेड एक्सियोस हियर। इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं, हटा रहा हूँ, सेव किया, बढ़िया चल रही है। ठीक है, app.jsx में टेस्ट है, मस्त चल रहा है। अब मैं यहाँ पे पता है क्या लिखूंगा, डिव के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे h1 लोडिंग डॉट डॉट डॉट। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, जैसे ये डेटा आ रहा है ना, लोडिंग की जगह यहाँ पे क्या आ जाए, डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली। अगर कोई एरर हो जाए तो यहाँ पे दिख जाए एरर है। तो ये काम कैसे कर सकता हूँ, वैसे तो फटाफट इस लोडिंग पे मैं इस CN लगाता हूँ एक क्लास ने, इसको पैडिंग देता हूँ P5 राउंडेड फुल BG इंडिगो 300। सेव किया एंड ये कुछ ऐसा आ रहा है, इसको विड्थ दे देता हूँ मैं, कितने दूँ, इतने दे देता हूँ यार, बहुत है, इतने से तो क्या ही हो रहा है ना, कितने दूँ,
इसको ऐसे पैक करता हूँ, इसको बोलता हूँ 100 पिक्सल ले ले भाई, 100 पिक्सल विथ ले ले, या फिर छोड़ो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये मैं इसको ये बोल देता हूँ कि ना तू ना भाई इनलाइन ब्लॉक हो जाए, इनलाइन ब्लॉक। ऐसा करने से पूरी विथ नहीं आके इतनी आ जाएगी जितनी इसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मुझे ये थोड़ा सा सेंटर में चाहिए, तो मैं इसको बोल दूंगा MX ऑटो, मतलब मार्जिन एक्स डायरेक्शन में ऑटो कर ले, बट वो क्यों नहीं रहा, इसको विथ देना पड़ेगी, इसके कंटेनर को देना पड़ेगी शायद CN विथ स्क्रीन, नो क्यों नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन भी अपने पास, ऐसा कुछ कर लेते हैं। इसको बोला फ्लैक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर, सेव किया तो आइटम सेंटर क्यों नहीं है, अच्छा इसको हाइट फुल स्क्रीन देना पड़ेगी, हाइट स्क्रीन, सेव किया, बढ़िया है, आ गया बीच में। अब इस पर मैं एनिमेशन लगा दूंगा, एक एनिमेट स्पिन कर दूँ क्या, सेव किया, स्पिन तो अभी लग रहा है, एनिमेट बाउंस करा दूँ, बाउंस वाला लगेगा थोड़ा सा कि लोडिंग चल रही है, चलो ये बढ़िया है। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे ही लोडिंग खत्म हो जाए ये बाउंस वाला रुक जाए और यहाँ पे लिख के आ जाए टॉमी सक्सेसफुल। ठीक है, तो क्या करूँ मैं इसके लिए, क्या करूँ, तो अब मुझे ना मेक श्योर आज वाली रिकॉर्डिंग देख के थोड़ा सा कोड कर लेना घर पे जाके। इंपोर्ट किया मैंने, इंपोर्ट करा रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। अब मैं यूज स्टेट हुक से ना एक स्टेट बनाऊंगा, बोलूँगा कॉन्स्ट यूज स्टेट, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोलूँगा रिस्पॉन्स सेट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे बोल लूँगा यूज स्टेट। अब एक्चुअली होता क्या है, आप ना डायरेक्ट यूज स्टेट को रिएक्ट से इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के कि पूरा रिएक्ट नहीं चाहिए, बस यूज स्टेट चाहिए रिएक्ट में से। उसको इनिशियली बोल दो फॉल्स, कि शुरू में हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया है। आप इसका H1 को यहाँ से कट करके, H1 को यहाँ से कट करके कर्ली ब्रैकेट्स लगा दोगे। कर्ली ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे, अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू, अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू, अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू नल है, सॉरी मतलब फॉल्सी है, फॉल्सी का नोट क्या हो जाएगा, ट्रू सी। तो अगर फॉल्सी पे ट्रू सी हो रहा है तो हम क्या रेंडर करा देंगे, ये वाला H1 जो हमने अभी कट किया था। अब जरा सेव करो, लोडिंग चल रही है, लोडिंग चल रही है, बट अगर मैं इसको फॉल्स की जगह ट्रू कर दूंगा, ठीक है, सेव कर दूंगा, सेट रिस्पॉन्स को ट्रू किया, सेव किया, गायब, है ना। हमें क्या चाहिए, बस सेट रिस्पॉन्स की वैल्यू को ट्रू करा देना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, लोडिंग चल रही है, बढ़िया है, इसको फिर से फॉल्स कर दो। अपन को बस एक काम करना है क्या, कि जो जो ये है ना जहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है, जब ये देन हो रहा है, पहली बात मुझे रिस्पॉन्स को कोई यूज़ नहीं करना, डेटा दिखाना ही नहीं है क्या है ना, मुझे यहाँ पे कुछ करना, बस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं सेट रिस्पॉन्स कर दूंगा ट्रू, सेट रिस्पॉन्स कर दूंगा, सेट रिस्पॉन्स दैट इज इक्वल टू ट्रू। अब क्या होगा जरा देखना, लेट मी शो यू, रिफ्रेश किया, डेटा आ रहा है, गायब, वाओ यार, wasn't it amazing, डेटा आया, गायब। अब मेरे को क्या है, जैसे ही डेटा आया है, लोडिंग वाला इफेक्ट हट के तुरंत वेबसाइट दिखना चाहिए, मजेदार। क्यों आ रही है नींद, आई ना नींद, बस सर आप ऐसा पढ़ाते ही हो कि नींद आ जाए, है ना, यही तो मेरा कमाल है। चलो ठीक है, फिर मैंने कहा इसके अंदर ना ये जो H1 है, क्यों ना इसको, चलो H1 ही रखो, इसको ही कॉपी किया मैंने, ठीक है। मैंने बोला देखो अगर मैंने बोला देखो रिस्पॉन्स में ना नल है और साथ ही साथ एक और चीज़ बन, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे लगाओ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, चेक करो कि रिस्पॉन्स नल है क्या, मतलब फॉल्सी है क्या। अगर रिस्पॉन्स फॉल्सी है तो ये कर दो, एल्स में क्या किया मैंने, एल्स में एक और ब्रैकेट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सड्डा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुको जरा, ओके 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 ओके, हाँ यस यस। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लूँगा, टर्नरी ऑपरेटर लगा के इस H1 को कॉपी करके, इस H1 को कॉपी करके एंड सेव किया, एंड यहाँ पे मैं राउंड इंडिगो की जगह बस यहाँ पे लिख दूंगा ग्रीन
ग्रीन, और ये कर दूंगा 500 इनलाइन ब्लॉक। बाकी तो सब ठीक है, बस ये एनिमेशन डिव पे लगा हुआ है, ये इस पे नहीं है। तो भैया डिव तो हिलता रहेगा। देखो सेव किया, डिव तो हिलता रहेगा। लोडिंग ग्रीन क्यों हो गया? अच्छा ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली। सेव किया तो ये आ रहा है, मुझे चाहिए हिले ना। और इस टाइम पे मैं टेक्स्ट को भी वाइट कर दूंगा, ठीक है, हिले ना ये। तो क्या करूँ मैं, जो ये एनिमेट वाली चीज़ है ना, इसको मैं कट करूँगा क्लास को यहाँ से। इसके अंदर वाला मटेरियल यहाँ से कट करूँगा, ठीक है, और इसको यहाँ से हटा के कर्ली ब्रैकेट्स एंड बैकटिक में इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बस जो एनिमेट वाली क्लास है ना, इसको मैं यहाँ से कट करके साइड में ले आऊँगा, सबसे साइड में। चलो भाई पीछे जाओ, यहाँ पे लूँगा एक कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी डॉलर सिंबल कर्ली ब्रैकेट एंड उसका रिस्पॉन्स ही है ना वेरिएबल, स्टेट का नाम। हाँ, अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू फॉल्स है, तो इस केस में मुझे क्या करना है, कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं इसे, एंड से। इस केस में हमें क्या करना है, हम बोल देंगे इसको ना, ये वाली क्लास दे दो, कौन सी, क्या नाम था इस क्लास का, एनिमेट बाउंस, ठीक है। सेव किया, लेट मी जस्ट रिफ्रेश। तो भैया बाउंस हो रहा है, लेकिन जैसे ही डेटा आ जाएगा बाउंस होना बंद हो जाएगा। वायर ये तो बहुत खतरनाक चीज़ थी, ये तो आग चीज़ थी, मज़ा आ गया। एरर वाला भी इफ़ यू वांट यू कैन इम्प्लीमेंट। चलिए, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आज सीखा, कल अच्छे से सीखते हैं इस चीज़ को। डेटा को फैच करके यहाँ पे रेंडर करा के भी दिखाएंगे।